and good afternoon. I am Research Associate Rabia Anwar at the Center for Law and Security, and I warmly welcome my esteemed guests for at the webinar series, which is a regular feature of the center. So today the topic under discussion is of crucial importance to the survival of Pakistan's economy, that is modernizing Pakistan's economy, as the current economic model has fallouts which are hard to bear by the citizens of Pakistan. And to have an enlightened discussion on the subject, we have two distinguished guests with us. Director of the Center for Aerospace and Security Studies, Dr. Usman Chauhan, and Head of the Pakistan Institute of Development in Economics, Dr. Shujat Farooq. I welcome both of you, sir. Thank you very much for joining us. The discussion shall be moderated by the Executive Director of Class, Mr. Rahman Azhar. And without any further delay, I would like to begin the discussion. So I would like to begin the discussion from you, sir, Dr. Usman Chauhan. Sir, a lot of people are inquisitive that will Pakistan ever be able to modernize its economy by following IMF conditions? And what could be the long-term implications of IMF conditions on Pakistan's economy? Thank you for this question. I think it's a very important way to look at the problem. That is the IMF the answer for Pakistan? In my judgment, the IMF's recommendations generally are not the answer for any country. You don't have to look at Pakistan for this. You can look at many other countries that have been in IMF programs over the past 50 years, and the ones that have recovered significantly after a crisis where the IMF wanted to step in, they often presented their own plans instead. You have the Indian example after the 90s or during the 90s. You have the Malaysian example in the late 90s. What they did was they posited indigenous solutions, targeted things on their own, and they did the thinking on their own part. If you have the IMF recommend things to you, it often does so in a very blanket sort of manner because it has to deal with 190 countries. It's not particularly interested in your local context, and it doesn't really have your best interests at heart necessarily. That doesn't mean it's your enemy, but it certainly isn't your friend. So what it often posits to you are in areas that you can say are overarching stopgap solutions. For example, raise your taxes. Or it'll say, this is a big issue, just cut this off, or just do this in very sweeping manner. And the more optimal approach for any country is to do targeted measures that sidestep political vested interests and actually look at the deep structure of society and work for public value. So the IMF is not going to do that for you. So, sir, how can we escape this IMF question, and how can we broaden the tax base of Pakistan? If you ask specifically about taxes, there are plenty of ways to do that. However, I don't believe that taxation is the main issue. I think that our expenditures and our fiscal federalism are much more important. The way that the IMF has framed it, due to us, not their fault, our fault, is that we have too little direct and indirect taxation. So we have to raise that so that we can address our fiscal needs. But actually, the bigger problem is that the way we are spending is really, really worrisome. And we can go into that in detail, but my biggest concerns, the two are how much just goes straight away to the provinces and how that is spent is a much bigger and more worrisome thing. And the second thing is that we borrow a lot, and we borrow specifically a lot from our domestic banks at very high interest rates, and they make record profits. And we have this ballooning of debt, which is very scary. So I'm actually not that interested in doing the tax stuff, but you do have your usual suspects. The usual suspects are retailers, the real estate, the agriculture sector, etc. And you could squeeze them, but they are also the decision makers in your society. Their lobbying is so intense and their interests are so deep that you cannot really imagine the personnel of the state without imagining them sitting on top and pulling strings. So taxation is only one part of it. Keep that in mind. The bigger thing is how you spend that money. If you spend it to create public value, then you should actually tax even more.
But I don't see that happening, and most of Pakistan lives outside the federal territory, so it's a provincial subject. Their welfare is a provincial subject, and I think provincial governments are really, really terrible at spending money. That is why you have this issue of ghost schools and ghost hospitals, and the further out you go from the provincial capital, the worse things become. Right. अच्छा, मैं थोड़ा सा जरा, I think शुजात साहब, I want your opinion. थोड़ा सा मैं जरा basic structure of economy की तरफ जाना चाहता हूँ, and I think that's something we wanted to discuss today. और वो ये था कि पाकिस्तान की जो economic structures हैं और economic approach है, क्या हम उसको modernize classify करेंगे, या फिर you think these are regressive approaches? कंसिडरिंग बहुत सारे जो मुल्क हैं उन्होंने कुछ मॉडल जो है वो फॉलो किए हैं, एंड दे रियली डन वेल. एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड, हाउ डू यू सी पाकिस्तान इकोनॉमिक स्ट्रक्चर? क्या ये किसी हद तक मॉडर्नाइज है, या आपको लगता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर और पॉलिसीज हैं वो भी रिग्रेसिव है? जी शुजात साहब. जी सर, सॉरी सर, जी देखें सर, चार हमारे इश्यूज हैं, चूंकि आपने इकोनॉमी की बात की है. पहली चीज अगर आप देखें तो हमारी शायद पॉलिसी मिसिंग है इंटायरली, अगर आप पिछले 3 डिकेड को देखें. सबसे पहली चीज तो यह है कि उस्मान साहब ने जो एक बात की कि हाँ, आपकी पॉलिसीज इंडिजिनियस होती है. आज इंडिया जहां पे खड़ा है उसके पीछे उनकी 90s की पॉलिसीज है, चाहे वो उनकी ग्रोथ देखें, चाहे प्रोडक्टिविटी देखें, चाहे इंटरनेट देखें, और चाहे ग्लोबलाइजेशन देखें. हमारी सबसे पहले कि पॉलिसी कंसिस्टेंसी है ही नहीं है. इसीलिए देखें हमारे ग्रोथ के बबल्स आते हैं. 2 साल अच्छी ग्रोथ होती है, फिर 2 साल बहुत वर्ष होती है. तो पहला जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि एक कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं है कि जिसकी वजह से हम कोई ग्रोथ अचीव कर सकें. और बड़ी माजरत के साथ आपका चूंकि इदारा तो सिक्योरिटी को वो भी देखता है, तो हम जब भी पॉलिसी को देखते हैं पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल से हमारा सिक्योरिटी मेन एजेंडा है. ग्लोबलाइजेशन है, दुनिया ट्रेड की तरफ जा रही है, दुनिया इकोनॉमी को ओपन करने की तरफ जा रही है. और आज भी पाकिस्तान और मिस्र वो 2 कंट्रीज हैं कि जहां पे हाई टैक्स रेट है इंपोर्ट्स के ऊपर. यानी इस वक्त भी हम ट्रेड दुनिया के साथ नहीं करना चाहते. तो ग्रोथ कैसे आएगी कि जब हम ट्रेड नहीं करना चाहते? तो पहला जो हमारा एक्सटर्नल इशू है वो यह है कि हम दुनिया के साथ आज भी ट्रेड को रोक रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप पिछले 1 साल में भी देखें तो हमने इंपोर्ट्स के ऊपर बहुत से टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपोज किए हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि ये हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को रिड्यूस किया है. भाई ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं है. नेचुरल तो होता है कि आपकी कंपैटिटिवनेस है. आप चाइना को देखें, एक्सपोर्ट्स बढ़े नहीं है और उससे हो रहे हैं. दूसरा देखें हमारा इंटरनल बैलेंस है, जो चौहान साहब ने बात की कि हमारा इशू इस वक्त फिस्कल से ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर का इशू है. और फिस्कल भी इशू है जो उस्मान साहब ने प्रोविंसेस वगैरह को हाईलाइट किया है. एक्सपेंडिचर क्यों इशू है कि अगर आप देखें कि पिछले 1 साल के अंदर, देखें दुनिया में होता है कि जब आपकी रिसेशन होती है, जब इकोनॉमी डाउन होती है, जिस तरह हमारी इस वक्त 2-3% से ऊपर ग्रोथ नहीं है, तो हम टैक्सेस को ईज करते हैं. लेकिन पाकिस्तान टैक्सेस को एनहांस कर रहा है. तो जब आप टैक्सेस को और बढ़ाएंगे तो बिजनेस कोई नहीं करेगा. मैं पिछले साल का अगर डाटा देखूं जो इकोनॉमिक आउटलुक में आया है, हमारी ग्रोथ 3% नहीं है. हमने एफबीआर रेवेन्यूज को इनहांस किया बाय 31%, और हमने नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो लेवी टैक्सेस हैं कि पेट्रोल के ऊपर लेवी ड्यूटी लगा दी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा दी, सीमेंट के ऊपर 100 रुपया बढ़ा दिया, वो सब 96% इंक्रीज हुए हैं. तो ये जो टैक्स बर्डन जो आज हम फील कर कहता है कि आपने बैलेंस, तो हम एक्सपेंडिचर को तो कम नहीं करने जा रहे, हम टैक्सेस को और एनहांस करते हैं. और टैक्सेस भी जो उस्मान साहब ने बताया कि इस वक्त प्रोविंसेस और लोकल गवर्नमेंट वहां से तो कोई टैक्स आ ही नहीं रहा है. एग्रीकल्चर एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है.
21% उसका जीडीपी में 20% शेयर है। होलसेल रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर 45% जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और टैक्स के अंदर यहाँ से सिर्फ 2 से 3% टैक्स आ रहा है। तो ये देखें, जो सेकंड हमारा इशू है इंटरनल है। थर्ड में आ जाता हूँ डेट फाइनेंसिंग पे। सर इस साल के आप बजट देखें तो इस साल गवर्नमेंट का जो बजट है वो तकरीबन 18.8 ट्रिलियन है। उसमें हम जो टैक्सेस कलेक्ट करेंगे वो तकरीबन 13,000 अरब है, और 13,000 में से 54% तो सीधा सीधा प्रोविंसेस के पास चला जाएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू भी मिला के गवर्नमेंट के पास सिर्फ 10,000 बिलियन है, और 10,000 बिलियन ही हमें डेट सर्विसिंग करनी है इस साल के लिए। तो ये समझ ले बड़ा सिंपल सी चीज है कि इस साल की जितनी हम गवर्नमेंट चला रहे हैं फेडरल, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो हमारे पेंशन्स हैं, चाहे गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंडिचर हैं, और चाहे हमारी डेवलपमेंट है, ये सब का सरकार पे है। वो सब आप कर्जे पे जो है वो वक्त आपके इस साल गवर्नमेंट टोटली उधार, जो आपने उधार खर्च कर वो मिनिमम आपने उधार ले। ठीक। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए मेरी बात है, जो सिक्योरिटी वाला पॉइंट आपने रेज किया, सिक्योरिटी की असल में डेफिनेशन भी बड़ी ब्रॉड होती है। सिक्योरिटी अब वो ट्रेडिशनल सेंस में नहीं ली जाती कि किसी ने जो है वो आकर बॉर्डर के ऊपर जो है वो खड़े होकर बंदूक से जो है वो लोगों को रोकना है या पासपोर्ट कलेक्ट करना, तो वही सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी अब क्योंकि हर चीज के साथ जुड़ी है, इकोनॉमी के साथ, आपकी सोशल सिक्योरिटी का भी कहा जाता है, ह्यूमन सिक्योरिटी का भी कहा जाता है। तो मेरा ख्याल है हम यहाँ पर सिक्योरिटी को एक बड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो देखते हैं। इट इज नॉट स्ट्रिक्टली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफेंस या आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में जो है नहीं देखते। लेकिन मैं इकोनॉमी पे उस्मान साहब थोड़ा जरा उसके ऊपर वापस आना चाहता हूँ। हमारी इकोनॉमिक फिलोसफी जो है वो क्या है, अब उसमें आपको कंसिस्टेंसी क्यों नहीं नजर आती, और अगर है तो वो कहाँ पर है? बिकॉज जिस तरह से जहाँ तक बात की कि ये सारी की सारी पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा तो मॉडर्न आउटलुक के साथ जो है वो नहीं है। तो वेयर डू यू सी, क्यों जिस तरह से बाकी इन्होंने इंडिया की भी बात की कि एक इकोनॉमिक फिलोसफी के ऊपर एक कंसेंसस जो है वो नजर आता है, हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? Philosophy is a very एक बहुत गहरा लफ्ज है. It's a very profound word because philosophy implies that you think through things. Unfortunately, we मेरा ख्याल है have इसको had. अगर अगर आप इस तरह से कर लें कि हमारी जो अप्रोच है या हमारी जो डिफरेंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, हाउ दे अप्रोच दिस सब्जेक्ट। Yes, that's fine. In fact, I like the word philosophy because it will give us, it's very instructive to realize where we are in terms of the autopilot on which the economy has run. The philosophy of the economy, the software beneath it is still a colonial software. This is the British system. This is, अब आप modernization की बात करते हैं तो colonialism is a 17th century mindset. The Portuguese came and the British came, और ये उसी राजनीति के ऊपर मबनी है, which is to say that there is a small state which extracts the maximum with the idea of transferring that wealth to London. Today, also, it does that. It transfers it to Zurich and to London. And the elite is not particularly interested in having domestic roots except to extract wealth. So the minimum viable presence that they need is what they will have. Because this is very important. It sounds like a political statement, but I'm not so much into the politics. It's more about understanding the operating logic. And since we have not reformed our institutions since the British, we will continue on that logic no matter who is in power. So there is a consistency in terms of the operating logic, but any disruptions to that improve our society end up looking counterproductive because they are a deviance from the philosophy, and that philosophy is colonialism. So until we take a good hard look at that and start to have indigenous solutions, जैसे शुजात भाई ने भी दुरुस्त फरमाया और मैंने भी अर्ज किया है, until you start having indigenous solutions, it means that you have the end goal of doing something for someone else rather than your own people. That is the philosophy we are at. अच्छा, बट एक अप्रोच ये भी कहा जाता है कि वी कैन बी क्रिएटिव विद आवर अप्रोचेस इफ वी आर नॉट फायर फाइटिंग, या फिर हम बिल्कुल ही जो है वो अगर हमारे पास पैसे हों या हमारे पास रिसोर्सेज हों तो वी कैन बी क्रिएटिव विद आवर सॉल्यूशन। यहाँ पर तो हम जो है वो ज्यादा सिस्टम, तो डू यू थिंक हमारे पास इतना मार्जिन है कि वी कैन बी क्रिएटिव अबाउट these ideas on how to improve and modernize economy?
Bilkul, bilkul, we can absolutely be creative. Creativity is never a function of your economic endowment, like your resource endowment. Creativity is a function of freedom. And the people who are best positioned to steer our economy are never put in the position to steer our economy. There are intrusions from other institutions, from external donors, and from other parties that prevent people from making the decision. Creativity is never a function of the resource endowment. The other thing is that our endowment is actually large, and it is very large at the provincial level. So there is no finance minister of any province who will ever tell you कि मेरे पास पैसे थोड़े पड़ गए. दर हकीकत उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन वो किसी तरह उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते. They can't use it for the benefit of the people because people don't do service delivery at the middle and the bottom rungs. So if you feel that you don't have paisa, it's at the federal level. And the federal level is considered always in a firefighting position because they're external and internal threats. That is fine, that's understandable. But if you go one step below federation, you have to start to point the finger at the people in charge. कि ये सूबे में ये हालत है क्यों? या फलाने सूबे में या फलाने महकमे में या फलाने जिले में ये हालत है क्यों? ये किसी गैर की नहीं है और ये कोई हंगामी हालत की वजह से नहीं है. अच्छा, उस्मान साहब, सॉरी शिटा साहब, आपको लगता है कि हमारे पास वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने के लिए चाहिए होते हैं? सब मेरे ख्याल से हम अगर आज वो इंग्रेडिएंट बनाने की भी कोशिश करेंगे, एक तो देखें जो डॉक्टर उस्मान साहब ने कहा कि जब तक आपकी इंडिजिनियस थिंकिंग नहीं होगी, शायद वो इंडिजिनियस थिंकिंग ही आपका मेन इंग्रेडिएंट है. आप सबसे पहले देखें कि वो इंग्रेडिएंट आपकी पार्लियामेंट है, तो क्या पार्लियामेंट की पिछले अगर आप 10, 15, 20 सालों की देखें तो क्या पार्लियामेंट की वो कैपेसिटी है कि वो कंट्री को डिराइव दे. नंबर 2, आपकी एग्जेक्टिव आ जाती है तो मिनिस्टर्स हैं. अब फॉर एग्जांपल एनर्जी आप देख लें, एनर्जी इज इवन बिग देन इकोनॉमी. तो जो एनर्जी के साथ हमने हशर किया है और जो आज मैं और आप एक एनर्जी पावर्टी का क्राइसिस फेस कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम शायद ट्रांसपोर्ट पावर्टी का क्राइसिस फेस कर रहे हैं, ये सब का सब हो. फिर आप देखिए उसके बाद आपकी ब्यूरोक्रेसी है. जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो उस रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने करना है. जब तक ब्यूरोक्रेसी की विल नहीं है, 18th अमेंडमेंट आती है, उस 18th अमेंडमेंट में बड़ा क्लियरली लिखा जाता है ये सब्जेक्ट डिवॉल्व है और हमने आज तक डिवॉल्व नहीं किए. इवन बहुत सी रिफॉर्म्स बनी. डॉक्टर इशरत की आप रिपोर्ट देखें जिसमें उन्होंने को 200+ फेडरल एंटिटीज को कहा कि आफ्टर 18th अमेंडमेंट दे शुड बी एबॉलिश्ड. तो आप देखें ये जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, ये आपका सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ वो इंग्रेडिएंट हम में नहीं है. अच्छा, जो एक और गैप आया है जो शायद वेस्टेज इंटरेस्ट है या कैपेसिटी के साथ आया है, वो हमारे डोनर्स की इन्वॉल्वमेंट है कि इस वक्त बदकिस्मती से रादर देन लुकिंग टुवर्ड इंडिजिनियस सॉल्यूशंस, वी आर ऑप्टिंग द अप्रोच कि जहाँ पे हम दुनिया को कह रहे हैं कि वो आके हमें बताए कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं. यानी मैं अभी आपको बताऊं, बड़े एक वेग से TOR थे कि जहाँ पे हम बिलियंस ऑफ रुपीज बाहर की कंपनीज को, बाहर की फर्म्स को कह रहे हैं कि हमें इश्यूज बताएं. भाई किसको इश्यूज का नहीं पता. फॉर एग्जांपल एनर्जी का इशू है, इकोनॉमी का इशू है, या हमारा फिस्कल डिसिप्लिन है, या एक्सपेंडिचर का डिसिप्लिन है, वी ऑल नो दैट. और ये सारी की सारी रिपोर्ट हम शेल्फ पे रखते हैं. तो आप देखें इस वक्त डोनर्स एक बड़ी शायद बड़ी रीजन वो फैक्टर आया. मैं उसकी एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमें इस वक्त डोनर पॉलिसी बना के दे रहा है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किसने करना है. तो हमारे पास वो इन ऑर्डर नहीं है कि फर्स्ट के हम अपनी पॉलिसीज खुद बनाएं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें. तो राइट नाउ ठीक है, हम वो कंसल्टेंसीज तो ले रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, मैकेंजीज देयर, लॉट ऑफ कोरास आर देयर, लेकिन वो शायद हमारे अंदर वो विल पावर भी नहीं है. और शायद एक वेस्टेज इंटरेस्ट भी होगा. जो मेरी फीलिंग है इस वक्त है कि इकोनॉमी के साथ फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी है तो उसका वेस्टेज इंटरेस्ट है. दे हैव जॉब्स, दे हैव अथॉरिटी. इसी तरीके से पॉलिटिशियंस हैं. तो वो जो हम कह रहे हैं कि एक्सपेंडिचर इज द बिग इशू, वो हम लूज नहीं करना चाह रहे. तो उसी लिए फिर सारे का सारा जो बर्डन है वो एक कॉमन पर्सन पे आ रहा है. जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि 100% हमने नॉन टैक्स रेवेन्यूज को तो एनहांस किया है. तो जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी के का बेड़ा ठीक होना था वो भी इन टैक्सेस ने वो खत्म कर दिया. और अल्टीमेट देखना, जो हमारी मिडिल क्लास इकोनॉमी को ड्राइव करती है वो तो क्रश हो रही है.
क्योंकि उनकी सेविंग की कैपेसिटी नहीं है, बिजनेस कोई नहीं करना चाहता। इस मुल्क का एक ही देखें मसला फ्यूचर में हल होगा, वो डॉलर आपके पास आएगा। अब डॉलर कहाँ से आएगा जब बिजनेस कोलैप्स हो रहे हैं? तो रिफॉर्म मीन तो ये है कि इकोनॉमी को ईज करें, इकोनॉमी को हम ईज नहीं करना। ठीक। मैं उस्मान साहब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस हवाले से ही पूछना चाहता हूँ, बिकॉज इन ए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके मुल्क आते हैं या नहीं आते हैं, और दूसरा अगर वो आते हैं तो क्यों आते हैं, और अगर नहीं आते तो नहीं आ रहे। तो पाकिस्तान में आपको क्या सिचुएशन लगती है? ऑल्दो इसके लिए पॉलिसीज और इकोनॉमिक मॉडल्स के उठाना कहीं से आसान नहीं है, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे मुल्कों ने जो है वो किया है, चीजें आसान की हैं। मुल्क चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज वहां पर आकर बिजनेस करें। पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है? There's two parts to your question. One is foreign investment and one is foreign-like investment, which is actually the overseas Pakistanis. I believe that the overseas Pakistanis are the biggest asset that we have because they have the capital, they have the money. They are worth, I think, $200 billion. That's a rough back of the envelope estimate. If you had $200 billion, they are patriotic. They have a connection to Pakistan and they would like to invest for the long run here. That is who we should be tapping, but they seem supremely disinterested. You have seen हम UAE से 10 बिलियन अगर मांग रहे हैं तो 12 बिलियन तो यहाँ से वहां गया उस दौरान, because our people are starting businesses there and so on. This is very tragic. And so there's foreign-like investment, which I think is more important. In the long run, they will build or end up rebuilding our society, not foreigners. But if you look at foreigners, they look at Pakistan the way they look at a portfolio of emerging markets. So you are no different from Vietnam, Bangladesh, Kenya, Tanzania, etc. तो उस हिसाब से फिर वो देखते हैं कि टैक्सेस कहाँ कम है, ease of business doing business कहाँ ज़्यादा आसान है, and in that sense Pakistan is quite a rough place to do business because our mindset is one where you, instead of taking a cut out of the business after profits are made, we like to take the cut before it's made. And so large foreign investors and multinationals actually have quite a bit of fatigue here because they say, I'm used to giving bribes and stuff, but I ain't used to giving them before I do anything. So wo jo hai, that culture is actually very, very hostile. And the way our system is designed, jo ki Shujat bhai ka bunyadi mafhoom hai, it is actually adverse to economic development and to growth because people will get in your way if you start a legitimate business from the municipal level all the way to the top. And you can't have so great a cost of doing business in a country that actually doesn't have that much buying power per capita. So either you are very wealthy and very crooked, or you are clean and you are poor, and then you'll become rich. दो तरीके हैं. Right. I think हमारे पास अभी टाइम जरा थोड़ा है, so Rabia, over to you. I think if you have any question. Yes, sir. My final question, I would like to have opinion of both of you, sir. Sir, currently सबसे ज़्यादा जो class exploit हो रही है वो middle and lower middle class है. So what steps can government take to ensure an inclusive growth that benefits all segments of society? Shujat Sahab, please feel free. थैंक यू। राबिया, देखें हम इस वक्त दुनिया के जो टॉप 5 हाईएस्ट CPI इन्फ्लेशन फेस कर रहे हैं ना कंट्रीज पिछले 2-4 साल में, पाकिस्तान भी उसमें है। कोविड आया, कोविड के बाद ठीक है सप्लाई चेन दुनिया की डिस्टर्ब हुई, हम भी उसका शिकार हुए, लेकिन इस वक्त जो हमारी इन्फ्लेशन है वो हमारी इकोनॉमी के इश्यूज के साथ लिंक है, क्योंकि हम पैसा प्रिंट कर रहे हैं, उसमें हम डेट सर्विसिंग कर रहे हैं और उसमें हम नए नए टैक्सेस को इम्पोज कर रहे हैं। और जब आप बिजली का महीने के बाद बिल देते हैं तो यू बेटर के वो बिजली महंगी क्यों हो रही है। तो देखिए इकोनॉमी को, पब्लिक को ईज करने के लिए इस वक्त जो हम IMF में फंस चुके हैं, और आप देखें आज से 10-15 साल पीछे चले जाएं तो शायद हमें $1 बिलियन, $2 बिलियन का IMF का प्रोग्राम चाहिए था। अब हमें बड़े प्रोग्राम, जिस तरह अब भी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है $6-7 बिलियन का, और जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 10,000 बिलियन इस साल हमारी सिर्फ जिसको कहते हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट होगी, और 60% जो बजट है गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाएगा। तो आप इमेजिन करें
जो अमाउंट इस वक्त हम लोन ले चुके हैं वो लोन अगले 6-7 ईयर से भी ज्यादा का है। तो देखें, जो नंबर 1 तो इशू है कि ग्रोथ हमें चाहिए। अब ग्रोथ के लिए एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस के बगैर हम अचीव नहीं कर सकते। मैं आज देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको एक्सपोर्टर के साथ बैठना होगा और उनको ईज देनी होगी। देखिए, इस वक्त हमारे इतने गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज हैं कि जो बिजनेस थोड़ा बहुत हो रहा है उसके ऊपर भी हम उसको नहीं होने दे रहे। ईज करें, एक्सपोर्टर को ईज दें और उसको एक्सपोर्ट करने दें। नंबर 2 हमारा इंटरनल बैलेंस है, उसमें इंटरनल बैलेंस में सिंपल टैक्सेस को, टैक्स बेस को थोड़ा सा एनहांस करने की कोशिश करें, टैक्स नेट बढ़े। और इवन पाकिस्तान में लॉन्ग रन में अगर आप चले जाएं तो ये फाइलर नॉन फाइलर से आप बाहर निकलें। दुनिया में कहीं पे फाइलर नॉन फाइलर नहीं होता है। आप सिंपल इकोनॉमी को फॉर्मलाइज करने की कोशिश करें। मैं अभी चाइना होके आया हूँ, तो एक छोटी से छोटी रेडी के पास भी QR कोड के थ्रू पेमेंट हो रही है। तो गवर्नमेंट बहुत रिफॉर्म्स लेके आती है कि फॉर एग्जांपल इस वक्त G2P और P2G अगर आप अमाउंट का वॉल्यूम देखें, आज अगर हम ये डिजिटल थोड़ी सी पेमेंट के सिस्टम्स को कर दें जो इंडिया ने आधार कार्ड के थ्रू किया, चाइना में चल रहा है, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में पे करेगी। इम्प्लीमेंटेशन के आपको लगता है कि बहुत सारे वो जी क्रिएटिव वेज हो सकते हैं? जो इस वक्त हमारी पॉलिसीज है ना, वो पॉलिसीज नहीं है, वो पैचेज है। जो आपने शुरू में भी कहा, एक मिनिस्टर आता है वो कहता है जी अगले 1 साल में मुझे रिजल्ट चाहिए। इकोनॉमी के अंदर साल में रिजल्ट नहीं आते। पॉलिसी होता है कि आप एक स्टेप लें और 10 साल तक फिर उसको कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करें। हमारे यहाँ पे ट्रेड पॉलिसी आती है, वो 6 महीने के बाद चेंज होती है। तो अल्टीमेटली बाहर का इन्वेस्टर भी आपके मुल्क में इसीलिए इन्वेस्ट नहीं करता है क्योंकि वो कहते हैं 6 साल के बाद, 6 महीने के बाद मुझे नहीं पता कि मैं अपना पैसा लेके जाऊंगा या नहीं। चले, अब हमारे पास जरा सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। उस्मान साहब, वेरी क्विकली वे फॉरवर्ड, आपके ख्याल में इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द स्ट्रक्चर, रिफॉर्म्स, इकोनॉमी, क्या होना चाहिए? I agree with the digitization element. It's very useful, but I believe that the structure of our federation has to be looked at. मेरे ख्याल से अब 4 सूबे जिन हर एक की आबादी मेक्सिको से बड़ी है, ये नहीं चल सकता. You need 12-13 सूबे, smaller, well designed, and deliver good public service in the provinces. If you do that, you will be ready to pay even more tax, and you will see with that sort of sahulat, the middle class will ultimately be strengthened because they won't have to run from pillar to post on private spending. They will have a good society working for them. So to save the middle class, you have to look at the deep structure, whether it's a primitive system or a digital system. It can be done, and it can be done quickly, inshallah. Let's hope so. Ji, I think we've lost Rabia. So Rabia, can you hear me? Can you hear us actually? Acha. Sir, am I audible to you? Ji, we can hear you. But I think thoda sa kuch delay hai, but on behalf of Rabia and Center for Law and Security, Usman Saab, thank you so much. Shuja Saab, thank you so much. It was a pleasure. और hopefully हम किसी और भी दिन आपको जरा तंग करेंगे। ये टॉपिक थोड़ा जरा बड़ा है, so I think there are a lot of other points to be discussed. But thank you for now, Jen. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Allah Hafiz. Thank you.